sp3, right? First you have to find the hybridization, right? Then you have to check how many bone pairs, and lone pairs. So here we have 4 bond pair. Okay, so NH3 again hybridization sp3, but 3 bond pair plus 1 lone pair. H2O again sp3, but 2 bond pair plus 2 lone pair. CO2. So this is your sp, right? So now tell me, this is pyramidal. Pyramidal. Tell me, pyramidal किस केस में होगा? Shape. I'm not talking about structure. I'm talking about shape, right? Because sp3 structure will be tetrahedral. Okay. So I can say that in A, CH3, both shape and structure are tetrahedral because 4 bond pairs. Now, when you talk about C, it is bent, bent because 2 lone pair. Now tell me about NH3, 1 lone pair, 3 bond pair, right? So it will be pyramidal. Got it? So the answer is B. Okay, so this is for 73. Now 75. Which of the following molecule is linear? So linear means hybridization should be sp, right? C2H2, C, right? Now there will be triple bond. Why? Because we have only 2 hydrogen. Okay, tell me, hybridization is sp and sp. So it will be linear or not? Will it be linear? Tell me. Yes. Okay, because this is your sp3, 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 and sp3 is tetrahedral. It's not linear at all. Okay, so the answer is A. So I guess till 75 everything is clear. 76. O and O bond angle is maximum in. Now tell me, when you talk about bond angle, what you have to see first? You have to see the hybridization. Okay. Okay. Now just see this structure of NO3 minus. N, we want O, O minus, and coordinate bond O. Okay. Right? Or plus minus. Like that. Okay. So hybridization is sp2. Now NO2 minus. N will want O, single one O minus, and one lone pair. Okay, so here also sp2, but 2 bond pair plus 1 lone pair. NO2, N one O, single one O, right? Okay, lone pair will be given to O, and 1 electron will be left. Odd electron bond, right? And an odd electron bond. Okay. Okay. Now NO2 plus N will want O, will want O plus, right? This is your NO plus. Now tell me, just think about it. Okay, right? Now you know this structure. Can you tell me? Batao. So now we know the structure. So this is your sp. Okay, this is your sp because 4 electrons are involved in double bond. Okay, 2 double bonds. So only 2 single bond, right? No lone pair. So sp. Now when you talk about NO2 minus, this is clearly sp2 with 1 lone pair and 2 bond pair. When you talk about this, it is sp2 with 3 bond pair, right? Got it. What about C? What about NO2? Tell me. What about NO2?
Can anyone tell me? Anyone? What is the hybridization of NO2? We have N, one O. Now coordinate bond can be written as plus, minus, right? Okay, then we have one electron. ठीक है? Think, क्या हो रहा है? Okay, so see, that's the problem, right? It cannot be totally sp2, okay, right? Because it is single electron. It's not a lone pair, it's a single electron, but it is somewhat like sp2, okay, right? But luckily we don't have to worry about the hybridization, we just have to see the angle. So hybridization would be something like sp2, but what about the angle? Because it is not your lone pair, it is not your lone pair, okay, it is single electron. Tell me, repulsion between single electron, right, and bond pair, and repulsion between lone pair and bond pair, which will be more, or a repulsion between bond pair and bond pair? Tell me. This is A, B, C. Arrange them, right? Arrange them. So repulsion is maximum in C, lone pair, then bond pair, then one electron in bond pair. Okay. Because of that, the angle of this ONO is around 132 degrees. Okay, right? Technically, it should have been 120 for sp2. For lone pair, when it is lone pair, it is less than 120 degrees, right? Got it? So it is 115 degree. In this case, it is around 120, which is 118, 119. So around 120. Okay, so around 120. But in this case, it is sp, so it is 180 degrees. Now tell me, this is this was obvious question, right? You don't have to worry about NO2 because NO plus का already has sp hybridization होता है ना? So angle obviously sp में maximum होगा. I explained this so that you can know the order, right? So order is NO2 plus सबसे ज़्यादा, then NO2, right? Then NO2 minus, right? ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा? NO का हो जाएगा, फिर NO2 का, ठीक है, फिर NO3 minus, लास्ट पे NO2 minus, ठीक है? Everyone got this? 76? Yes, tell me. ठीक है, so sp hybridization, ठीक है, तो हाइब्रिडेशन सही पता चल गया, बट आई एक्सप्लेन NO2 और NO2 माइनस में किसका होगा, ठीक है? चलो, वेरी गुड. नाउ 76 के बाद था 77 एंड 79. सो 77 अगेन, 77 डाइपोल मोमेंट, ये प्रॉब्लम हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है. एंगल ज्यादा तो डाइपोल मोमेंट कम. यहाँ पे ये डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, सो इसका डाइपोल मोमेंट 0 है. यहाँ पे एंगल कितना है? 60 भी है, और यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल 120 डिग्री है, राइट? 120 डिग्री. और ये तो CH3 है, तो ये तो ऐसे भी बहुत कम, ऑलमोस्ट जीरो मान लो, ठीक है, राइट? क्योंकि इसमें होगा तो ऐसे होगा और बहुत ही कम होगा, ठीक है, बिकॉज हाइब्रिडेशन इसका sp2 है, इसका sp3 है, राइट? सो टेक्निकली जो इस डायरेक्शन होगा कि ये less electronegative है, ये ज़्यादा electronegative है, but this is very less. That's why it is considered as non-polar. Toluene is considered as non-polar. Okay. Now, tell me, क्या हो गया order?
बताओ सबसे कम कौन सा, सबसे कम कौन सा? सबसे कम कौन सा? फोर्थ, बिकॉज ये तो टोटली जीरो हो गया है ना, राइट? टोटली जीरो हो गया, सबसे कम फोर्थ। सो सबसे कम फोर्थ, फोर्थ। ना फोर्थ के बाद टेल मी। फोर्थ के बाद आ जाएगा फर्स्ट। ओके, फोर्थ सबसे कम, उसके बाद वन, उसके बाद टेल मी टू, है ना, टू, और सबसे ज्यादा थ्री, राइट? सो द ऑर्डर इज बी। गॉट इट एवरीवन, है ना? सबको समझ में आया? बी, ठीक है। सबसे ज्यादा थ्री हो जाएगा, फिर टू, फिर वन, फिर फोर, बिकॉज यहाँ पे राइट ऑलमोस्ट जीरो है, राइट ऑलमोस्ट, बट एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे sp3 और ये sp2, तो कुछ होगा, बहुत कम होगा बट कुछ होगा, बट यहाँ पे टोटली जीरो हो जाएगा बिकॉज कैंसिल कर देगा, ठीक है? सो अब सबको समझ में आया वन और टू में ए और बी में बी क्यों होगा? ओके, गॉट इट एवरीवन, राइट? एवरीवन गॉट दिस? साम्या, मानसी, साई स्मृति, निशिता, रिया, जितेंद्र, करिश्मा, तुलिप, सुमैया, श्रेया, प्रियंका, ठीक है, चलो, ओके, वेरी गुड। प्रियंका इज नॉट देयर, प्रियंका इज देयर। श्रेया, सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो, नेक्स्ट 79। सो व्हेन n2 plus is formed, n2 plus, ठीक है, फ्रॉम n2 बॉन्ड ऑर्डर, सिंपल है ना, राइट? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है? सो n2 का बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम है, थ्री है, थ्री। अब इससे ज्यादा नहीं होना, कॉमन सेंस है, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं, राइट? सो ऑब्वियसली अगर तुमको नहीं भी पता है ना, तो डिक्रीज ही होगा। सो डिक्रीज, डिक्रीज। और O2 प्लस का इंक्रीज, बिकॉज एक क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जाता है, सो ये 2.5 होता है, ये 2 होता है, ये भी 2.5 होता है, राइट? सो यू नो द आंसर, राइट? डिक्रीज एंड इंक्रीज, ठीक है, वेरी गुड करिश्मा, श्रीहरि, रौनक, वेरी गुड, ठीक है। नाउ 79 तक हो गया, 80 टू 85, टेल मी, 80 टू 85, कोई भी डाउट है पूछो, ठीक है, कोई भी डाउट है पूछो। 80, ओके। सो अगेन बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, तो ध्यान दो, बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स को पढ़ो अच्छे से एक बार। ये एग्जांपल ऑलरेडी किया हुआ है हमारा। पहले क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन, राइट? हाइब्रिडाइजेशन, second is number of lone pair if hybridization is same, third electronegativity of central atom if number of lone pair is also same, fourth electronegativity of surrounding atoms if all the three are same, ठीक है? So यहाँ पे देखो, luckily the hybridization of every compound, right, is same, sp3, sp3, ठीक है? तो NH3 की बात करते हैं, थ्री बॉन्ड पेयर, थ्री बॉन्ड पेयर प्लस वन लोन पेयर, ठीक है। H2O, टू बॉन्ड पेयर प्लस टू लोन पेयर। PH3, PH3 तो छोड़ ही दो, PH3 का तो 90 डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल होता है, सबको पता है, याद है ना, राइट?
pH3 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। तो pH3 तो 90 डिग्री होता है, एक्सेप्शन टाइप था, पता है कि नहीं सबको? टेल मी, राइट? ड्रैगोस रूल, है ना? सो ऑब्वियसली 90 डिग्री होने के कारण इसका एंगल क्या होना चाहिए? काफी कम होना चाहिए, राइट? देन H2S, ठीक है? H2S में 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, ओके? ठीक है ना? सबसे ज्यादा किसका? डेफिनेटली सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? NH3 का, राइट? क्योंकि एक लोन पेयर है ना, और 3 बॉन्ड पेयर। सो NH3 का सबसे ज्यादा, NH3 NH3 ना, NH3 का टेक्निकली किससे ज्यादा होना चाहिए? NH3 का ज्यादा होना चाहिए PH3 से, है ना? बिकॉज PH3 में भी 3 लोन पेयर, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर होता है, बट वी नो दैट PH3 का बॉन्ड एंगल एक्सेप्शनली कम होता है बिकॉज ऑफ हायर P कैरेक्टर, राइट? सो दैट्स व्हाई सेकंड नंबर पे PH3 नहीं आएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा H2O, क्योंकि डेफिनेटली H2O H2S से तो ज्यादा होगा ना, राइट? ऐसे देखो, H2O और H2S को कंपेयर कर सकते हैं, सॉरी H2S को कंपेयर कर सकते हैं, सब कुछ सेम। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन में ज्यादा है, सल्फर में कम है, दैट्स व्हाई H2O का ज्यादा होगा H2S से। ऐसे कंपेयर करो, चारों को एक साथ मत कंपेयर करो, एक एक करके कंपेयर करो। तो H2O H2S से ज्यादा, इन सेम वे NH3 H2O से ज्यादा, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, ठीक है? तो ये हो गया, है ना? NH3 ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन H2S। ना अभी दिक्कत है, दिक्कत ये है कि PH3 कहाँ जाएगा, है ना? PH3 कहाँ जाएगा, राइट? तो ध्यान दो, यहाँ पे दो लोन पेयर के कारण, दो लोन H2S में दो लोन पेयर और S ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है, राइट? ऑब्वियसली रिपल्शन विल बी वेरी हाई, राइट? है ना? और टेक्निकली भी देखा जाए तो H2S और PH3 ये दोनों में क्या लगता है? PH3 ज्यादा होना चाहिए, है ना? दो लोन पेयर एक लोन पेयर, राइट? इसका बॉन्ड एंगल कम हो रहा है तो ऑब्वियसली इसका भी तो कम होगा, सो इट विल बी between H2O and H2S, ठीक है? सबको समझ में आया? यस श्रीहरि, वेरी गुड। बिटवीन H2O and H2S, yes or no? Tell me, yes or no? Got it अनघा, you got it, है ना? चलो, वेरी गुड। सो ये हो गया 82. Now we will see question number 82. Okay, 83 भी, okay. So see question number 82. In which of the molecule the van der Waals force are likely to be most important determining melting point, boiling point? So ध्यान दो, van der Waals force किसमें होता है? पहली बात, जो कि पोलर ना हो, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, राइट? और मर्क्यूरी वेट काफी ज्यादा हो, ठीक है? राइट? टेल मी, किसका मर्क्यूरी वेट सबसे ज्यादा? बताओ 82 में, because we know that van der Waals force, right, is directly proportional to molecular mass, ठीक है? किसका सबसे ज्यादा? टेल मी। Br2, yes, very good, है ना? सबसे ज्यादा इसका, तो ये आंसर है, ठीक है? गॉट इट? सो मोलिकुलर मास देख लेना है, ठीक है? राइट? निशिता स्नेहा, गॉट इट? ठीक है? चलो 83 सी, ये रट लो, 83 रट लो, डिबाई से कूलम्ब मीटर, बट ये नोट्स में लिखा हुआ था, ठीक है? नोट्स में लिखा हुआ था, और यहाँ मॉड्यूल में भी स्टार्टिंग में शायद लिखा हुआ था, वन डिबाई इज इक्वल टू 3.33 into
10⁻30 कूलम मीटर। ठीक है, ये याद करना। 1 डिवाइस इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर, सॉरी कूलम मीटर। ठीक है, तो हो जाएगा सो 1.85 इंटू 3.33 इंटू 10⁻30, दैट्स द आंसर। ठीक है, गॉट इट एवरीवन, राइट? रौनक गॉट इट? चलो 85 तक, 85 तक कोई और प्रॉब्लम? जल्दी पूछो 85 तक। नहीं है किसी को? 85 तक कोई और प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, 87 तक, 87 तक, 86 87 में कोई डाउट है? अच्छा, मैंने होमवर्क दिया था एक बहुत पहले, मैं भूल गया था, सॉरी। होमवर्क ये था डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर CCl4, CHCl3, CH2Cl2 और CH3Cl, इसको ऑर्डर निकालना था। ठीक है, इसका ऑर्डर निकालना था, राइट? 2 मेरा काम है, बताओ what would be the order? I'll just write it as A, B, C, D, because hybridization तो चारों का sp3 है, hybridization तो चारों का sp3 है ना, right? So tell me what should be the order? Everyone should think and tell me. जल्दी सोचो, ठीक है, सोचो। क्या लगता है क्या होना चाहिए? D greater than B, C और A almost equal, okay? B is CHCl3, साम्या it is CHCl3, ठीक है, CHCl3, CHCl3, ठीक है। ध्यान दो, B1 is CHCl3, right? C is CHCl2 and CHCl3. So without thinking, you can say that CHCl3 dipole moment should be 0 because है ना, it should be 0, A 0, सबसे कम CCl4 का होना चाहिए, सबसे कम CCl4 का होना चाहिए। Yes, okay, very good, ठीक है, ठीक है। ओवैस, श्रीहरि ए कम है, निश्चिता तुम्हारा इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बताओ। डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट नहीं है कि सबसे कम क्या होगा, ए होगा। नाउ स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओ, तुमको स्ट्रक्चर बनाने से क्लैरिटी मिलेगी। सी Cl, 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 H, HCCl3, C, Cl,
Cl H H C H H H Cl। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर। नाउ जस्ट think about this structure. Okay, now when you think about this structure, right, when you think about the structure, tell me क्या लग रहा है? CHCl3 में या ये इधर, ये इधर, ये इधर, और C और H में H कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना, राइट, H कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा नेगेटिव, तो ये इधर, है ना। तो इस केस में सब कोई एडिटिव हो जाएगा, सब का डायरेक्शन नेट इधर हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे सोच रहे होगे तुम लोग, ऐसे ही सोच रहे होगे ना, राइट, तुम लोग भी ऐसे ही सोच रहे होगे। देखते क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट, इस केस में, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, राइट, ऐसे ऐसे हो गया, और इस केस में ये एक ऐसे हो गया, बाकी ठीक है। और एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कार्बन और हाइड्रोजन में बहुत ही कम होता है। द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज वेरी लेस, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है कार्बन और हाइड्रोजन में। ठीक है, ना सोचो, क्योंकि देखो मैं बता दूंगा तुमको याद नहीं रहेगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा मतलब काफी अच्छा है। तो ए सबसे कम हो गया, सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे कम तो ए है, सबसे ज्यादा किसका है वो बताओ, राइट, ऐसे सोचो, सबसे कम पहले हो गया, सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा, टेल मी, किसका लग रहा है सबसे ज्यादा किसका होगा? डी, CH3Cl। निशिता, रिया, ठीक है। सो एक्चुअली सबसे ज्यादा बी का ही होता है। ठीक है, बिकॉज ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, राइट, ये सब सपोर्ट करके एक डायरेक्शन में आता है। ठीक है, सो द डाइपोल मोमेंट ऑफ CHCl3, ओके, CHCl3, राइट। नाउ उसके बाद देखो ये वाला, इस केस में ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, राइट, और इसमें ये तीन डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, बी बोला तुम लोगों ने, विच इज CHCl3। CHCl3 का सबसे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, CHCl3 का, राइट, CH3 का डाइपोल मोमेंट तुम्हारा 1 पॉइंट समथिंग 1.03 होता है। ठीक है, 1.03 होता है, बिकॉज इसका जो कंपोनेंट आता है ना इस डायरेक्शन में, वो कंपैरेटिवली कम होगा। ठीक है, CH2Cl2 का ज्यादा होगा। CH2Cl2 इज योर 1.6 और CH3Cl इज 1.94। ठीक है, राइट, ये ऑर्डर होता है, इसलिए सबसे ज्यादा CHCl3 होता है, सॉरी, CH3Cl, बार बार मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी माय बैड, CH3Cl, ओके, राइट, सबसे ज्यादा CH3Cl, उसके बाद CH2Cl2, उसके बाद CHCl3। ठीक है, ये होता है, गॉट इट। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली तुम लोग इन दोनों में गलती कर दोगे, CHCl3 सबसे ज्यादा बोलोगे,
हाँ ऑलमोस्ट सेम होता है, बट डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन जो इसका है ना वो डोमिनेटिंग फैक्टर है, राइट? ठीक है, और इस सील का इस पे डेल्टा प्लस आता है, ध्यान दो। सी और एच अगर तुम ऐसे बात करते हो, सो दिस इज कंसीडर्ड एज नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है, राइट? सी एच इज कंसीडर्ड एज नॉन पोलर बॉन्ड, ये पोलर नहीं होता है। बट अगर इसके साथ कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो इसके चार्ज क्या होगा, डेल्टा प्लस, और डेल्टा प्लस आने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना? सो इसके कारण इस पे चार्ज आएगा डेल्टा डेल्टा प्लस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट, जो हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ रही है चीज, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट बहुत कम डायपोलमेंट होगा, ठीक है, सी एच बॉन्ड में बहुत कम होगा, राइट? बिकॉज सी विल बिकम डेल्टा प्लस। ओवैस समझ में आ रहा है तुमको ये चीज? ओवैस समझ में आया अब? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट, राइट? है ना, कि फ्लोरीन जो है वो कार्बन से लिया, डेल्टा प्लस बना दिया ना, डेल्टा प्लस है, गरीब बन गया ये, राइट? अगर ये गरीब है तो ये बगल वाले से और कुछ लेगा, राइट? है ना, तो अब ये इसको गरीब बनाएगा, ठीक है, गॉट इट, राइट? सो दिस इज द ऑर्डर, अपने नोटबुक में लिख लो, ये प्रीवियस में आएगा ही ऑलरेडी क्योंकि ये आ चुका है शायद, ठीक है, गॉट इट? चलो नेक्स्ट। सो 87 तक किसको डाउट नहीं है? 90 तक बता दो जल्दी से, 90 तक, 90 तक कोई डाउट? जल्दी जल्दी 90, नो डाउट्स, इजी है ना? 89 ठीक है। द कंपाउंड नाम नहीं पता होगा तुमको, ठीक है, इसीलिए नाम देखो, 1,2 ब्यूटाडाइन, सो ब्यूट इन, ब्यूटेन 4 कार्बन, ब्यूटाडाइन 2 अल्कीन है, एक फर्स्ट पोजीशन पे और एक थर्ड पोजीशन पे, नहीं सेकंड पोजीशन, सॉरी सेकंड पोजीशन पे, 1,2 ब्यूटाडाइन, ठीक है। अब बताओ, ये H, ये H, यहाँ एक हाइड्रोजन, नहीं एक भी हाइड्रोजन नहीं, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ H H H, टेल मी क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। 3 बॉन्ड sp2, 2 बॉन्ड sp, 3 बॉन्ड sp2, 4 बॉन्ड sp3, है ना? सो कितना हो गया, D, राइट? इट इज प्रांजल, इट वाज जस्ट फॉर क्लोरीन, वो क्लोरीन के लिए ही था, ठीक है, क्लोरीन के लिए ही था सिर्फ, ठीक है, ओके। सो 90 तक में कोई डाउट्स नहीं है, ओके वेरी गुड, राइट, ठीक है। सो वी विल सी प्रीवियस ईयर नाउ, ठीक है। तो सबका मॉड्यूल टीपी क्लियर हो चुका है, मॉड्यूल टीपी क्लियर हो गया, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर okay, wait for 2 minutes, okay, 1 to 4 or 1 to 5, sorry, 1 to 5 and 11 to 13, 1, सी करिश्मा, क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है करिश्मा, मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। NH3 अपना लोन पेयर देता है BF3 को, एडक्ट बनाता है ना, बट ऑप्शन देने का तरीका अलग है, बट क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। हाउ मेनी इफ यू रिमेंबर दिस, टेल मी, हाउ मेनी इफ यू रिमेंबर दिस? मॉड्यूल और नोट्स में हर जगह है, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, NH B, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, F F F, राइट? कितने लोगों को ये पता है? ठीक है,
राइट नाउ अब बताओ, in which of the following species the interatomic bond angle is 109.28 degrees? So what is the meaning of interatomic bond angle is equal to 109.28 degrees? Means aberration क्या होना चाहिए भाई? sp3 simple sp3 aberration होना चाहिए, है ना? दोनों के बीच में sp3 aberration होना चाहिए. So देख लो ना, देख लो NH3 का aberration क्या है? sp3. bf4 माइनस तो अलग ही है, राइट? उसका भी sp3 है, बट दोनों एक साथ नहीं है. क्या लगता है? सोचो एक बार. आंसर एनीवन? क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा बताओ? टेल मी, एनीवन प्लीज रिप्लाई. किसने सॉल्व किया है? गाइस प्लीज रिप्लाई. राइट, फर्स्ट देख लो, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? आई एम नॉट टीचिंग माई सेल्फ, राइट? क्वेश्चन नंबर 11 to 14. ठीक है, नो डाउट. 11 to 14 में कोई डाउट नहीं है? किसी को डाउट नहीं है? कोई नहीं पूछ रहा है? नो वन हैव डाउट? सी सारे क्वेश्चंस नीट और जे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? कोई हाई लेवल क्वेश्चन नहीं है. एंड इफ यू डोंट नो, मेनी ऑफ नीट क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन जेई एंड मेनी ऑफ जेई मेंस क्वेश्चन आर आस्क्ड इन नीट एंड एम्स, राइट? सो ये मत सोचो अरे जेई है तो मेरा का क्या है, मैं क्यों बनाऊंगा. दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग केमिस्ट्री में स्पेशली. फिजिक्स में यू कैन लीव, फिजिक्स में यू कैन लीव, फिजिक्स में करने की जरूरत नहीं है ना? बट केमिस्ट्री में, if you want your chemistry to be strong, right, need students, please solve JEE mains, at least JEE mains problems. ठीक है? I would request to solve JEE advanced objective also, अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा करना है तो, बट JEE mains तो कंपलसरी है, ठीक है? क्योंकि आते हैं क्वेश्चन, आते हैं यार, ठीक है? चलो, सो 11 to 14 किसी को डाउट नहीं लग रहा है? कोई डाउट नहीं किसी को? नो वन हैव एनी डाउट? कोई बोल ही नहीं रहा है. किसका इंतजार कर रहे हो? ठीक है, चलो. 15 to 18, 15 to 18. सिक्सटीन एंड 17, ठीक है? सो देखो, 15, the decreasing value of bond angle from NH3 to SbH3 down the group is due to, ऑप्शंस देखो, ठीक है? ऑप्शंस देखो.
तुम जब ऑप्शन देखोगे, है ना, सो पहले क्या था, NH3, ये एंगल गलत दिया बाय द वे, ठीक है, ये जो एंगल दिया है ना 101 डिग्री, ये गलत है, ठीक है, इट इज 91, मिसप्रिंट है ये, 91 मिसप्रिंट है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ड्रैगोस रूल, याद है ड्रैगोस रूल, राइट, पी कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, राइट, है ना, ठीक है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, NH3 का, सॉरी, NH3 का होता है 106, राइट, नाउ PH3 ऑलरेडी हम लोगों ने देखा, PH3 इट इज, हम लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट 90 डिग्री, बट एक्चुअली इट इज 94 डिग्री, ठीक है, राइट, देन AS का कुछ होगा 92 93, SB का 91 92 के अराउंड, ठीक है, 91 दे है, और BH3 का और कम, ठीक है, इसका आंसर हमको लगता है, इसका आंसर क्या दिया हुआ है, इसका आंसर क्या दिया है, टेल मी व्हाट इज द आंसर गिवन, बिकॉज आई गेस देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस प्रॉब्लम, राइट, ठीक है, लगेगा कि आंसर डी है, बट sp3 हाइब्रिडेशन जनरली होगा ही नहीं ना, राइट, प्योर p ऑर्बिटल यूटिलाइज होता है ना, इस केस में ड्रैगोस रूल के हिसाब से प्योर p ऑर्बिटल यूटिलाइज होता है, ठीक है, नाउ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, राइट, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की बात की जाए तो एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर तो रहेंगे ही, ठीक है, राइट, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो कम हो रहा है, ज्यादा तो हो नहीं रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज तो कर रही है, दैट्स ट्रू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, राइट, नॉर्मली तुमसे पूछा जाए, भूल जाए सबको, सबको भूल जाओ, नॉर्मली पूछा जाए NH3 PH3 SbH3, राइट, ASH3 बीच में छूट गया, सॉरी, PSH3 एंड BH3, तो मैंने क्या बोला था, ऑर्डर, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, ऑर्डर, पहले क्या था, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, है ना, तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, कम हो रही है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो क्या होगा, रिपल्शन कम होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, याद है, सॉरी, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बिकॉज NH ये इधर शिफ्ट रहेगा ऐसे, तो रिपल्शन ज्यादा होगा, बट जैसे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करती जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल शिफ्ट अवे फ्रॉम फास्फोरस AsSb, है ना, सो नॉर्मली, नॉर्मल कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए, टेल मी, राइट, ज्यादा ड्रैगोस रूल नहीं सोचते, तो बी सही आंसर है ही, बी तो सही आंसर है कि नहीं, राइट, ठीक है, गॉट इट, sp3 आने देता तो डी भी हो जाता, ठीक है, राइट, बट अगेन sp3 दे दिया है, ठीक है, चलो नेक्स्ट, 16 हो गया सबका, 17 में डाउट है, डायमैग्नेटिक, अगेन डायमैग्नेटिक पे क्या करते हैं, बॉन्ड में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी हम लोगों ने देखा 15 इलेक्ट्रॉन्स,
18 इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन्स, 15 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हमेशा पैरामैग्नेटिक, बिकॉज अनपेयर्ड तो रहेगा ना, ऑड है तो अनपेयर्ड रहेगा, एज सिंपल एज दैट। नाउ अगर इवन है तो हो सकता है कि दो अनपेयर्ड रहे, है ना, राइट, दो अनपेयर्ड रहे। सो O2 पैरामैग्नेटिक है, पढ़ा है हमने, राइट। O2 2 माइनस, ये दो पेयर्ड हो गया तो डायमैग्नेटिक हो गया, एज सिंपल एज दैट। तो ये भी पढ़ा है हमने, ठीक है। हाँ इसीलिए तो बी ऑप्शन है ना, पूछा क्या है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नहीं पूछा है ना। O2 तो पैरामैग्नेटिक है ना, बिकॉज पाई पाई स्टार 2p(x1), पाई स्टार 2p(y1), लास्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो ये होता है ना, दोनों अनपेयर्ड अनपेयर्ड होता है। गॉट इट, ठीक है साम्या, समझ में आ गया। ओके नाउ 18 तक में आई गेस कोई डाउट नहीं है, ठीक है। 19 टू 22 जल्दी देख लो, 19 टू 22 एवरीवन, 19 टू 22। प्लीज आस्क 19 to 22, any doubt from 19 to 22? 19 बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, सेम एज जो भी 17 डिस्कस हुआ। 20 20 याद है सबको, 20 मॉड्यूलर क्वेश्चन याद है, आंसर इज सी 21, राइट। इजी ऑर्डर निकाल लो। 22 है ना, 22 देखो, सो 22 में द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी गिवन है। ओके 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 ओके, सो ध्यान दो, एक कॉन्सेप्ट जो मैंने नहीं पढ़ाया, राइट, जनरली वो नहीं पूछता है, सॉरी माय बैड, एक कॉन्सेप्ट छूट गया, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट छूट गया? दैट इज समथिंग कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, ठीक है। इट इज समथिंग कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, राइट, वेट, बैक बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, राइट। नाउ बैक बॉन्डिंग होता क्या है, सबको ध्यान से सुनेगा, बैक बॉन्डिंग क्या होता है। नाउ suppose we have molecule like BF3, B, F, 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 okay, this BF bond सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, टेल मी, क्या दिख रहा है ये, सिंगल की डबल, सबको क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, सिंगल, सबको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यस, राइट, ओके, ठीक है। now what happened here is in back bonding, suppose the atoms involved in the bond formation, if one atom have vacant lone pair, जैसे यहाँ पे B के पास vacant lone pair है, and if the other atom have fulfilled lone pair, ठीक है, क्लोरीन के पास fulfilled है, समझ में आ रहा है ना, और इस B का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, so what happens, there's a tendency to form a pi bond, ठीक है, right, this is called as back
bonding. This is called as back bonding. So B का जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है वो 2p है और F का भी 2p है. So जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो होगा 2p pi 2p pi, right? Pi bond form हो रहा है ना? Got it, right? Any issue in this? Partial pi, yes, partial pi bond. Okay, so it will form partial pi bonds. ठीक है, it's just like resonance kind of thing. Okay, that's why ये हम लोग resonance में पढ़ते हैं. It is also called as no bond resonance. ठीक है, right? समझ में आ रहा है? तो इसमें हो सकता है, फिर इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है. So it is something like this: B single bond F, B single bond F, F, F. बट क्योंकि तीन F बॉन्ड्स है, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड, है ना? यहाँ पे डेल्टा कौन सा चार्ज? माइनस की प्लस, प्लस ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस. और बी पे कौन सा चार्ज? बी पे कोई चार्ज नहीं होगा, है कि नहीं? राइट, गॉट इट? एनी इशू इन दैट? सबको समझ में आया बैक बॉन्डिंग? यस और नो? टेल मी. नोट कर लो, नोट कर लो ये, ठीक है, नोट इट डाउन. सी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है ना, ये पाई बॉन्ड हो रहा है. इट इज बैक बॉन्डिंग, अलग ही है ये पूरा. ओके, सो नोट इट डाउन, बैक बॉन्डिंग नोट कर लो, ठीक है? जल्दी से नोट करो, सब कोई नोट करो. ठीक है, ओके, ठीक है, चलो. सो आई गेस ये सबको समझ में आ गया होगा. नाउ एक और चीज नोट कर लो, दैट बैक बॉन्डिंग. अब खुद सोचो, ओवरलैपिंग किसका ज्यादा अच्छा है? इट इज जस्ट ओवरलैपिंग ना, लैटरल ओवरलैपिंग. यस और नो? इट इज जस्ट योर लैटरल ओवरलैपिंग. यस और नो? टेल मी. लैटरल ओवरलैपिंग ही है ना, है कि नहीं? सो 2p pi 2p pi 2p pi 2p pi 2p pi 3p pi और 2p pi 4p pi. सो ये तो होगा ही नहीं, है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस. इन दोनों बताओ किसका ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छे से होगा? 2p pi 2p pi या 2p pi 3p pi? बताओ. 2p pi 2p pi और 2p pi 3p pi? 2p pi 2p pi, वेरी गुड, है ना? तो BF3 और BCl3 अगर पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर वाला ऑर्डर, सही है ना, किसमें बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा? तो बताओ किसमें रहेगा, BF3 वाला कि BCl3 वाला? व्हाट डू यू थिंक? BF3 और BCl3? BF3, यस, वेरी गुड, है ना? चलो सबको समझ में आ गया. सो अब आंसर मिल गया तुमको? आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 22 का. द आंसर इज B. गॉट इट?
ओके चलो, सो ये हो गया 22 तक हो गया हमारा। 23 से 27, 23 से 27 27 ओके, सब कोई क्वेश्चन पढ़ लो। सो 27 क्यों नहीं बना होगा? क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर देखो, रीजन और स्ट्रक्चर तुम दोनों देखो। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, तो पहली बात फेनॉल किसको बोलते हैं? दिस इज योर फेनॉल। बेंजीन पे OH लग जाए तो वो फेनॉल है, राइट। बेंजीन पे OH लग जाए तो वो फेनॉल है। ऑर्थो पोजीशन कौन सा होता है? बगल वाला पोजीशन। तो यहाँ पे NO2 लग जाए तो ये हो गया तुम्हारा ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। पैरा यहाँ लग जाए तो ये हो गया पैरा, और ये हो गया मेटा। नाउ क्वेश्चन इज, ऑर्थो इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन पैरा एंड मेटा, बताओ व्हाई? टेल मी। आंसर बता चुके हैं ऑलरेडी, क्लास में डिस्कस हुआ है ये, ठीक है। व्हाई? एनीवन? एनीवन थिंक व्हाई? क्या होगा? yes yes very good, right? See, we know that hydrogen bonding in water, है ना, hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding increases solubility, and intra decreases solubility as compared to inter. yes or no? याद है सबको? सबको याद आ रहा है कुछ? ठीक है, यस वेरी गुड, याद आ रहा है ना? अब बताओ, ये एग्जांपल याद है? याद है ये एग्जांपल क्या हुआ था यहाँ पे? ये इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया था, है ना, राइट। दैट्स व्हाई द सॉल्युबिलिटी एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस, ठीक है। गॉट इट? सबको समझ में आ गया, राइट? सो आंसर इज बी, इट शोज इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 28 टू 28 टू 31, जल्दी बताओ, 28 टू 31, जल्दी करो, 34 क्वेश्चन ही है सिर्फ, 28 टू 31 जल्दी करो।
28, 30. Okay, so 28 देखो, in which of the following pair the two species are not isostructural? Okay, isostructural का मतलब क्या होता है? Isostructural means structure same होना चाहिए, means hybridization should be same, right? है ना? Hybridization same नहीं होता, structure कैसे same होगा? CO3 2 minus, just see CO3 2 minus, ठीक है? 28, everyone just see question 28. साफ साफ दिख रहा है, इसके पास 4 बॉन्ड बना हुआ है, राइट? C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस sp2 है भाई ये, और NO3 माइनस, ये तो देखा हुआ है, N डबल बॉन्ड O माइनस, और एक लोन पेयर यहाँ पे, ठीक है, राइट? सही, sp2 है. नॉट आइसोस्ट्रक्चर, नॉट सॉरी, नॉट आइसोस्ट्रक्चर. तो ये भी sp2, ये भी sp2, राइट? PCl4 Cl4, P4 प्लस इज P, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, कार्बन जैसा हो गया ना, राइट? Cl 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 sp3, ये भी sp3 sp3, और ये सबको, राइट? बिकॉज आ गया तो क्या बन गया वो? सिलिकॉन, राइट? तो सेम स्ट्रक्चर pf5, p के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 5 बॉन्ड बनाया है, वाइब्रेशन कितना हो गया? sp3d, br5, br के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बनाया है, तो एक लोन पेयर बच गया, तो वाइब्रेशन क्या हो गया? sp3d2. तो वाइब्रेशन ऑब्वियसली डिफरेंट है, तो ऐसे स्ट्रक्चरल नहीं है, ठीक है? गॉट इट? 28, गॉट इट? 28, क्वेश्चन नंबर 28 निशिका. माइनस है, देखो 3 माइनस है, ठीक है, सिंपल है, AlF6, Al में 3 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, राइट? तो क्या हो जाएगा? F F F F 6 बना दो, 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, सिंपल, ठीक है? गॉट इट? एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, Al F F F F माइनस F माइनस, ठीक है, ऐसा कुछ होता है. नेक्स्ट 30, रॉन्ग स्टेटमेंट. 30 में रॉन्ग स्टेटमेंट. OnCl, ONO minus are not isostructural. ठीक है? OnCl का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? स्ट्रक्चर छोड़ो ना, इलेक्ट्रॉन देख लो ना, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं. सॉरी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं. कितना हो गया? इतना इजी है ना, 8 7 और ये 17, ये 8 7 9, तो ये सही है. O3 is bent, सही है, O3 बेंट होता है, O डबल बॉन्ड O और ये लोन पे ऐसे बेंट होता है, ये सही है. ये ओजोन इज वॉयलेट इन ब्लैक, ये रटना पड़ेगा, सी रटना पड़ेगा, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं, सी रटना पड़ेगा. अरे इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है? इसमें इसका आंसर क्या दिया हुआ है? तुमको याद आ रहा है इससे कुछ गलत था, ठीक है? डायमेटिक ओजोन होता है, डायमेटिक, ठीक है, ओजोन डायमेटिक होता है, ठीक है? सो ओजोन इज वॉयलेट ब्लैक इन सॉलिड स्टेट, ये भी सही है. ठीक है, इसमें वही है, इसका आंसर जो है सी इज करेक्ट, सी करेक्ट है, श्रीहरि सी करेक्ट है, वो याद रखना है, ये ना सी करेक्ट, वो याद रखना है.
ठीक है, सी और डी दोनों सही है, ठीक है, बी भी सही है, ए में नॉट की जगह आइसोइलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए था, ठीक है, नॉट की जगह आइसोइलेक्ट्रॉनिक चाहिए था, यहाँ पे चारों सही है, ठीक है, राइट, सी करेक्ट है, की जगह आइसोइलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे सब सही है, ठीक है, गॉट इट एवरीवन, everyone got this, tell me, got this, right, चलो नेक्स्ट 31 बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर जीरो नेगेटिव नहीं एग्जिस्ट करेगा, राइट, क्लास में बताया हुआ है, 32 33, राइट, स्टेबिलिटी अगेन बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, राइट, याद है ना, 31 32 बॉन्ड ऑर्डर बेस्ड हो गया ना, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है, 33 बताओ, 33 टेल मी, 33 everyone 33, यस 33 पूछ रहा हूँ, क्या हो 33 बताओ, ध्यान दो, ये तो पता है इसका डेवलपमेंट जीरो है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जीरो है इसका, राइट, इसका जीरो है क्योंकि देखो सी ट्रिपल बॉन्ड एन लीनियर होता है, ये लीनियर होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसका भी जीरो, OH का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, SH का भी सेम हो जाएगा, तो इसके देखो, इसको तुमको लगता है कि ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बट ये वाला रह जाएगा लोन पेयर्स की वजह से, ठीक है, राइट, सो द आंसर इज डी, डी ना, डज नॉट इक्वल टू जीरो बोल रहा है श्रेयरी, डज नॉट इक्वल टू जीरो बोला है, ठीक है, आंसर इज डी, ठीक है, गॉट इट एवरीवन, OH अगर होगा तो SH भी तो होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा ना दोनों का, राइट, गॉट इट एवरीवन, टेल मी, रेज योर हैंड इफ यू गॉट दिस, रेज योर हैंड, ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन इज 34, तो इजी है ना, अभी कर लिया हम लोगों ने, 34 तो कर लिया था, राइट, सो हमारा चैप्टर खत्म होता है, सी, देखो यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं है भाई, सिस ट्रांस डबल बॉन्ड के और रिंग के अलोंग देखा जाता है, ठीक है, दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस ट्रांस, ये सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, राइट, तुमको सिर्फ ये दिख रहा है अपोजिट, बट ये भी तो है टोटल, लोन पेयर कार्ड में तो होता है कि नहीं, राइट, और ये सिमेट्रिकल हो जरूरी नहीं है, ठीक है, राइट, एंड दिस नॉट सिस, सिंगल बॉन्ड के अराउंड हो रहा है, अगर यहाँ पे ऐसा होता, ये अगर ऐसा होता ClH और ये बॉन्ड डायरेक्टली है ना, Cl, देन इसके अराउंड सिस ट्रांस कर सकते हो, बट ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, गॉट इट, OS, it's not cis trans, right, okay, yes, this Sunday empty is there, वो तो